अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हुमेरा, आपकी मॉडरेटर, एंड on behalf of Hope Heal, I welcome you all to our today's webinar on the topic Stress, the Hidden Pandemic. आज हमारे पास एक गेस्ट आए हैं, हमारे एस्टीम स्पीकर सर सैयद अब्दुल अहद, जिनके क्वालिफिकेशंस है एमएससी, एम acupuncture, DNP, and DCP. With over 12 years of hands-on clinical experience, Syed Abdul Ahad is a certified acupuncturist, hijama cupping practitioner, dietitian, and counseling therapist. उसके अलावा he is also an educationist के with अलावा 16 is also years of teaching experience in international British syllabus. He even does counseling for teenagers for behavioral issues, mobile addiction, and other psychological issues. Syed Abdul Ahad is the founder of Medina Health Education Center. His integrative approach combines evidence-based modern dietetics with traditional Islamic healing practices to deliver truly personalized care. He has successfully treated several patients across India and abroad for a wide range of conditions and has trained hundreds of practitioners through holistic healing courses in India and abroad. MashaAllah, Allahumma barik lahu. May Allah always make him successful in helping others. Ameen. Amen. Okay, before we start, a few quick guidelines. अपने mics please बंद रखें so that the webinar can go smooth. Shall we start? आंसर सेशन एंड में होगा। मैं गुजारिश करती हूँ कि आप सब एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और भरपूर फायदा उठाएं इस कीमती वेबिनार्स का। Okay, with full enthusiasm and a mindset of learning, I invite Sir Abdul Ahad to take over. Jazakallah khair for giving me this opportunity. I hope my audio and video is fine. Is it okay? Is everything fine? आवाज आ रही है ना आपको? Right. Yes, we can hear you. Yeah. I think the connection is all right, but from my side I have some lag. It's okay. I think it will get better inshallah. So let's start the session today. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wassalam ala Rasulillah al-Kareem. Amma ba'da. All praise is to Allah, the Creator, the Sustainer, and the Maintainer of the whole universe. Let countless blessings be upon the final messenger who was sent as a mercy to the whole mankind. Right. So let's jump into the topic directly. But before that, I want to tell you that, Alhamdulillah, in the past 12 to 13 years, I am doing my practice. As you already heard, what things I do, right? So from the past 4 years, I'm working on people who are dealing with stress, with anxiety disorder, and the cases are like overwhelming, like in all the fields. If you take the industry, if you take education, right, there are a lot of cases. So today I'm not just simply going to give you a class. I'm going to give you a picture, a broad picture. I'm going to give you my clinical experience, what I'm facing in my place, in my region. Basically, I'm from India, Chennai, Madras. Okay, so currently I'm practicing medicine, as well as I'm also helping kids. I'm teaching science to kids in the daytime. In the evening time, I have my own setup in my own place in my uh, clinic. I help people with health and with diet, with tib and nabawi.
Right. So let's jump into the topic. Right. So why did I decide this topic? Why did I decide this topic? You already know the topic. It is stress, the hidden pandemic. Right. So why it is a hidden pandemic? Right. First, I want to introduce that. Okay. See, let me give you a scenario. Let me give you a situation. Right. Uh, very recently, what happened in a workplace? हाँ, काम की जगह में एक इंडस्ट्री में एक कंपनी में क्या हुआ? Suddenly, there was some problem in the office, right? So the employee was doing some blunders. So the manager came and he told him that you are doing such problems. Okay, you have to change yourself. You have to improve yourself, and that was it. Okay. Next day, the employee did not come to the office. Okay, he sent a message to the manager that you have put me in depression, right? I cannot stop thinking. What you did yesterday was really bad, right? I cannot eat, I cannot think, right? I feel like committing suicide, right? आप समझते होंगे अभी क्या हुआ था, right? ऑफिस में क्या हुआ? What did the manager say? Huh? Nothing bad, right? So it is a usual thing. What the managers does, what the field in charge does, he goes and he corrects the worker. He tells him that this is not right, this is good, this is bad, and he tries to correct him, right? So this is the usual thing which happens in any office, right? Abhi kya hua? This person, the employee, is not able to tolerate anything. He's not able to tolerate uh, whatever the boss or the manager is telling to him, right? So he thinks that he has done a big offense. The manager has done a big offense. So he goes, he sends a message that he has very bad kind of thoughts, negative thoughts. He has racing mind, right? So he goes and complains to him. समझ रहे ना मेरी मेरी बात आपको? जो हो रहा है माशरे में वो बता रहा हूँ मैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? हाँ, लोगों का जो टॉलरेंस लेवल है वो कम हो चुका है, राइट? अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे एक स्टडी, राइट, किए हैं किसके ताल्लुक से? हाँ, ये सिचुएशन के ताल्लुक से। अभी जो सिचुएशन है हमारे माशरे में जो भी हो रहा है, राइट, पीपल और लेस टॉलरेंट, राइट? Nowadays people are less tolerant to Yes, true. any critics, any Mm. critical suggestions or anything which their boss or their manager say, right? They are not able to tolerate all those things, right? और इससे क्या हो रहा है, उन लोग को स्ट्रेस जो हो रहा है ना, वो उनको पता ही नहीं हो रहा है कि वो स्ट्रेस अंदर से उनको खा रहा है, राइट? जब जो है मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो दे कंप्लेन ऑफ इंसोम्निया, उनको नींद नहीं आ रही है, उनको जो है कुछ इन्फेक्शंस बार बार आ रहे हैं, या फिर जो है उनको पाल्पिटेशंस आ रहे हैं, या फिर बाल झड़ रहे हैं, राइट? उनको पता नहीं होता कि उनको जो है अंदर से स्ट्रेस खा रहा है। तो ऐसा ज़्यादातर होता है, लोग जब आते हैं, राइट, और जब ट्रीटमेंट करते हैं उनको, तो ट्रीटमेंट उनको जो है कुछ फ़ायदा ही नहीं करता, क्योंकि उनका जो कोर प्रॉब्लम होता है ना वो है स्ट्रेस, राइट? किसी चीज को जो है वो लोग बार बार सोच रहे हैं, बार बार ओवरथिंक कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस हो रहा है, राइट? और उनके अंदर जो है इन्फ्लेमेशन बढ़ जा रहा है, कि उसके वजह से क्या हो रहा है, हाँ, उनको तरह तरह के बीमारियां आना शुरू हो रहे हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट आई से, इट इज अ साइलेंट पैंडेमिक। सो क्या कर रहे हैं लोग? राइट, राइट, सो दे आर गोइंग फॉर, या, they are going to doctors, they are going to physicians, they are taking all those tests, diagnosis, but they are not able to figure out what the problem actually is. The problem is there in their mind, the problem is there in your, yeah, in their thoughts, right? तो रेसिंग माइंड जब होता है, राइट, जब जो है लोग जो है बार बार किसी चीज़ को जो है सोच रहे होते हैं, राइट, तो हमारा ब्रेन एक डिफरेंट तरीके से काम करता है, राइट? just give me 1 minute. I have some issue with my camera. I think the camera, the video is lagging, right? Just give me 1 minute.
Yeah. Now is it okay? Is it better now? या तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रहा है लोगों को, ये जो बेसिक प्रॉब्लम्स आ रहा है ना, इन्फेक्शन हो या फिर इम्यून सिस्टम का डाउन हो जाना, उसका वीक हो जाना, राइट, ये मेजोरिटी क्या होता है, अंदर से उनका जो सिस्टम है वो खा रहा है, या कौन इसको खा रहा है, स्ट्रेस उसको खा रहा है, राइट। सो ये जो रेसिंग थॉट्स है, नेगेटिव थॉट्स है, या फिर एंग्जाइटी इशू है, राइट, ये उनको अंदर से खा रहा है, ये लोगों को पता ही नहीं है। That's why I call this as a silent pandemic or a hidden pandemic. So most of the people, they have no idea that they are under stress, right? अगर उनका जो हार्मोन्स का टेस्ट किया जाए तो उनके अंदर जो है ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं ना, हाँ, ये स्ट्रेस हार्मोन्स ज़्यादा पाए जाएंगे। ओके। ये जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जैसा कि सेरोटोनिन, ये वगैरह कम पाए जाएंगे, राइट। ये जब हार्मोन जब सिक्रेट सिक्रेट होता है ना, हाँ, ये जो स्ट्रेस हार्मोन जब सिक्रेट होता है, ये हमारा हमारा जो बॉडी का फाइट और फ्लाइट सिस्टम है वो ऑन हो जाता है। जब ये फ्लाइट और फाइट सिस्टम जब ऑन होता है ना, हाँ, तो इसमें क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी वीक हो जाता है, राइट। दैट इज वाई पीपल कंप्लेन दैट दे हैव गैस्ट्रिक ट्रबल, दे हैव वीक इम्यून सिस्टम, राइट। जो है महीने में एक बार या फिर दो बार उनको जो है इन्फेक्शंस आ जाना, बुखार आ जाना, ये आम चीज़ है स्ट्रेस के कंडीशन में, राइट। स्ट्रेस के सिचुएशन में ये आम चीज़ है। स्किन में इन्फेक्शन है, राइट, ये बार बार आना, ये स्ट्रेस का एक जो है एक आउटर मैनिफेस्टेशन है, राइट। तो ब्रेन का मैकेनिज्म समझिए आप, जब किसी को जो है स्ट्रेस होता है ना, तो क्या होता है उनको, ब्रेन में दो पार्ट्स होते हैं, दो रीजन्स होते हैं, याद रख लीजिए। एक है अमिगडाला, अभी अभी स्क्रीन में मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। इसका मैकेनिज्म आप समझ लीजिए, ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डील विथ स्ट्रेस फॉर एवरीवन। ओके, दिस इज नॉट जस्ट आई एम टीचिंग यू सम इंफॉर्मेशन, राइट। व्हाट आई एम डूइंग हियर इज थेरेपी, ये थेरेपी है, राइट। अगर आप जान लेंगे ना, इस मैकेनिज्म को जान लेंगे ना, सो यू विल बी एबल टू maintain, I mean, you will be able to deal with your stress, you will be able to manage your stress। ओके, सो राइट, तो जब स्ट्रेस होता है ना, तो बॉडी में, स्पेशली ब्रेन में, ये जो अमिगडाला है, ये जो रीजन है ब्रेन में, ये ट्रिगर होता है, राइट। और उसके बाद ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, राइट, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये डम हो जाता है, यानी ये स्विच ऑफ हो जाता है, राइट। आप समझ लीजिए दोनों का फंक्शन क्या है, आप थोड़ा नोट कर लीजिए। ये जो अमिगडाला का फंक्शन है, फाइट और फ्लाइट, राइट, ये जो अमिगडाला रीजन है, ये सिर्फ डेंजर को सेंस करते रहता है, और जब डेंजर देख लेता है ना, तो बॉडी में जो है दूसरे हार्मोन्स, जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, वो सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं, राइट। तो ये जब सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं, तो बॉडी का जो मैकेनिज्म है टोटली चेंज होता है, राइट। तो उसकी उसकी वजह से क्या होता है, हाँ, गैस्ट्रिक इश्यूज, इम्यून सिस्टम जो है डम हो जाना, राइट, ये प्रॉब्लम्स आते हैं, राइट। और अगर ये लॉन्ग टर्म रहता है ना, इसीलिए जो है हार्मोनल चेंजेस आते हैं और हेयर फॉल होता है, राइट। तो ये जब अमिगडाला हमेशा के लिए जब ये ट्रिगर रहता है, मतलब ये एक्टिव रहता है ना, तो साइंस रिसर्च है कि ये जो अमिगडाला है ये ग्रो होता है, और ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ये श्रिंक हो जाता है। ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम क्या है, इसका काम है लॉजिकल थिंकिंग, राइट, एनालिसिस, यानी किसी चीज़ को जो है एनालाइज करना, राइट डिसीजन उठाना, राइट, इमोशनल नहीं हो जाना, एकदम रैशनल डिसीजन उठाना, राइट। फर्ज करिए जो है कोई रास्ते में जा रहे हैं, रोड में जा रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत जो है थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, सामने जो है कार वाला आ गया आपके, तो आपको फौरन क्या होता है, आपको गुस्सा आता है, आप जो है चिल्लाते हैं। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रिगरिंग अमिगडाला। आप जो है बगैर जो है सोचे समझे, बगैर जो है सिचुएशन को समझे, थोड़ी चीज़ को जो है आपने बड़ा करके उसको जो है आवाज़ आपकी ऊंची की और आपने चिल्लाया, तो दैट इज एन क्लासिक एग्जांपल ऑफ ट्रिगरिंग ऑफ अमिगडाला। तब अमिगडाला जो है ट्रिगर होता है ना, तो उसमें रैशनल थॉट कुछ भी नहीं रहता है, उसमें जो है लोग जो है पॉजिटिव या फिर जो है एकदम जो है लॉजिकल थिंकिंग नहीं करते वहाँ पे, राइट। तो वहाँ पे क्या होता है, हाँ, सिर्फ जो है चिड़चिड़ापन, झगड़ना, लड़ना, चिल्लाना, ऐसे होता है, राइट। अच्छा, जब ये अमिगडाला हमेशा ट्रिगर रहता है और ये जो ग्रो होता है ना, instead of prefrontal cortex, when amygdala grows, right, that is the
स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रॉब्लम, राइट। तो ये जब ग्रो होता है ना अमिगडाला, तो तभी जो है हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स स्टार्ट होते हैं, राइट। सो द पर्सन बिकम्स वेरी एंशियस, एंशियस डिसऑर्डर की तरफ जाते हैं, राइट। और फिर दूसरे जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की तरफ जाते हैं, राइट। तो यही जो है मेजर प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाता है, राइट। तो नोट कर लीजिए। तो फिजिकल प्रॉब्लम्स, उससे फिर फिजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, राइट। बिहेवियरल चेंजेस आते हैं जब अमिगडाला जो है हमेशा के लिए ट्रिगर होते रहता है और फिर एक्टिव रहता है, राइट। फॉर एग्जांपल जो है जब किसी को जो है एकदम सडन, एकदम एक्यूट उनको स्ट्रेस अटैक हो गया या फिर एंग्जाइटी अटैक हो गया, तो क्या होता है, नोट कर लीजिए। स्क्रीन पर है, आप जो सिम्टम्स मैं बोल रहा हूँ ना वो सब स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिए। सपोज जो है ऑफिस में गए, तो ऑफिस में या फिर काम की जगह है या फिर घर में है, राइट। किसी बड़े ने जो है, कोई एल्डरली पर्सन आपको कुछ बोल दिया, आपको जो क्रिटिसाइज कर दिए, तो फ़ौरन अगर आपको स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो है ट्रिगर हो गया, तो आपको लगेगा कि जो है सर फट रहा है, या फिर जो है आपका नेक जो है स्टिफ हो गया, शोल्डर स्टिफ हो गया। आपको किसी को जो है आपको थिंक करने की कोई जो है जो है यू आर नॉट एबल टू थिंक, यू आर नॉट एबल टू grasp any idea, you're not able to, you know, uh, able to observe things around you, राइट। आप आपकी दुनिया में मगन हैं। जब भी आपको फ्री फ्री टाइम मिलता, आप जो है एकदम अपसेट महसूस करते हैं, यू फील अपसेट, राइट। दीज आर द सिम्टम्स, राइट। सो रेसिंग थॉट्स, एक्सेसिव वरी, चिड़चिड़ापन, राइट, इरिटेबिलिटी, डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग। अब जो है जो टीनेजर्स है उनको प्रॉब्लम होता है, उनको कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम होता है, राइट। उनको पढ़ाई करने नहीं होता है, उनको जो है किसी चीज़ को जो है ग्रास्प करना, आइडियाज़ को ग्रास्प करना, ये प्रॉब्लम होता है उनको। और बिहेवियरल इशू ऐसे होता है कि थोड़े लोग जो है खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, मतलब किसी से बात नहीं करते, किसी से मिलते नहीं है, राइट। आपने जो है दुनिया में मगन रहते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, किसी चीज़ को जो है डिले करना, राइट। किसी चीज़ को जो है उस वक्त पर नहीं करना, डिले कर करके जो है उसको खींच खींच के करना, राइट। और जो है शुगर क्रेविंग्स, राइट। और कैफीन, कॉफ़ी ज़्यादा पीना, राइट। एपेटाइट में चेंजेस हैं, कभी मीठा खा रहे हैं, कभी खारा खा रहे हैं, कभी सॉर फूड्स खा रहे हैं, राइट। और हेल्थ इश्यूज में ज़्यादा जो दिखता है ना वो है स्लीप में प्रॉब्लम, मतलब नींद में प्रॉब्लम, इंसोम्निया के, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, पाल्पिटेशन जैसा कि मैं आपको बताया, मसल टेंशन है, फटीग है, रेस्टलेसनेस है। तो ये सब जो है क्लासिक सिम्टम्स हैं स्ट्रेस के, जो आपको इसको नोट करना होगा, आप इसको जो है फाइंड आउट करना होगा, राइट। अगर वो आप में हो सकता है, आपके अंदर हो सकता है, आपके घर के बच्चों में हो सकता है, आपके घर वालों में हो सकता है। सो यू हैव टू फाइंड आउट। सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू इज वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू डायग्नोस, वी नीड टू फाइंड आउट बेस्ड ऑन द सिम्टम्स। सिम्टम्स को आप चेक करना होगा और उसको फाइनलाइज करना होगा कि स्ट्रेस है क्या नहीं, राइट। सो प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्ट्रेस हो गया है, प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रेस, राइट, प्रोलॉन्ग हो रहा है, राइट। स्ट्रेस को प्रोलॉन्ग करने ही नहीं देना हमें, राइट। वो पॉइंट नोट कर लीजिए आप, राइट। और इसके रूट कॉजेज क्या है, रूट स्ट्रेस के रूट कॉजेज क्या है, राइट। तो मैं आपको एक स्टडी बताता हूँ। ये जो अमेरिकन स्टडी है, ये डॉक्टर जीन का एक रिसर्च है कि उन्होंने बताया कि ये जो जेन जी है, जेन जी और जेन अल्फा है, जो करंट जनरेशन है, ये बाय डिफॉल्ट इनका जो टॉलरेंस लेवल है ये बहुत कम है, राइट। और ये जल्दी ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं। इनके पास टॉलरेंट जो है, जो नेचर है वो एकदम जो है मिलेनियम से जो कम है, यानी जो 20 और 35, 30 के दरमियान है ना, जेन अल्फा, 20 और 30 के दरमियान ये वाले लोग, ये जनरेशन जो है, दे आर लेस टॉलरेंट, राइट। एंड दे आर हाईली एंशियस पीपल, राइट। दे गेट एंशियस वेरी वेरी फास्टर, राइट। एंड दे हैव लो कॉन्फिडेंस व्हेन इट कंपेयर टू द मिलेनियम्स। अभी जो हम हैं ना, जो 45 50 के हैं, इनको मिलेनियम कहा जाता है, राइट। ये जनरेशन को मिलेनियम कहा जाता है। और ये रिसर्च है, अमेरिकन रिसर्च है, राइट। सैन डिगो यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए में इसको किया गया था। और दूसरा रिसर्च भी ये है कि आज का जो सिचुएशन है, जो पैंडेमिक से कंटिन्यू हो रहा है, पैंडेमिक से जो लोग
इफेक्ट हुए थे लॉकडाउन्स में, फिर जो है वॉर का सिचुएशन है, फिर इकोनॉमिक क्राइसिस है, फिर क्लाइमेट चेंज है, फिर कैटास्ट्रोफिक इंसिडेंसेस हैं जो भी दुनिया में है, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम पाया जा रहा है। और उसके लिए जो है लोग यानी स्टेट गवर्नमेंट्स सिस्टम जो है, they are trying their best to open centers, trauma centers and psychiatric centers, but still they are not able to accomplish the target, so they are buckling under the weight of stress. Like आप देख रहे हैं हमारे यहाँ भी जो है, इंडिया में भी और दिस साउथ इंडिया में जो स्कूल्स कॉलेजेस हैं, ऐसा हो गया है कि हर एक स्कूल हर एक कॉलेज गवर्नमेंट स्कूल्स में भी वी नीड अ psychiatrist, we need counseling therapist to help the students, to help the teachers. ऐसा हो गया है क्योंकि जो है टाइम्स आर चेंजिंग, राइट, टाइम्स आर चेंजिंग, राइट। तो इसके न्यूट्रिशन कॉजेज भी देखना जरूरी होता है, राइट। न्यूट्रिशन कॉजेज भी देखना जरूरी होता है। तो न्यूट्रिशनली मोस्टली ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको वॉलनट्स में मिलेंगे, राइट। देखिए अब वॉलनट्स का जो शेप ही है ना वो ब्रेन का है, वॉलनट्स में मिलेंगे, फिर फिश फूड में आपको मिलेंगे, राइट। चेक करना होगा कि अगर उनको थायराइड है या फिर हार्मोनल इम्बैलेंसेस है वो भी चेक करना होगा। मैग्नीशियम डिफिशिएंसी से हो सकता है, राइट। ये जो स्ट्रेस जल्दी ट्रिगर होना और प्रोलॉन्ग होना, ये न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी से हो सकता है। तो ये जो मिनरल्स है ये भी चेक करना होता है, जैसे कि मैग्नीशियम है, फिर विटामिन डी है, फिर विटामिन बीज हैं, राइट। और इंसुलिन रेसिस्टेंस, इसको इसको भी जो है रूल्ड आउट करना ज़रूरी होता है, ये भी चेक करना होता है। उसके अलावा जो है मिजाज होता है, थोड़े लोगों का मिजाज ही ऐसा होता है कि जल्दी जो है वो लोग चिड़चिड़ हो जाते हैं, एंक्शियस हो जाते हैं। तो मिजाज के हिसाब से उनको जो है उनका उनके जो प्लान है, लाइफस्टाइल प्लान है, उसको बनाना पड़ता है, राइट। और उसके अलावा मोबाइल एडिक्शन है और डिजिटल डिटॉक्स करना पड़ता है, राइट। सो आप जानते ही होंगे मोबाइल एक्सेसिव मोबाइल के वजह से ये जो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है, ये रिसेंट स्टडी है, राइट। और आप जानते भी होंगे कि ज़्यादा मोबाइल गेमिंग की वजह से, हाँ, जो छोटे बच्चे हैं जो टीनेजर्स हैं उनकी जान भी गई है, राइट। सो सडन डेथ्स का कोई भी इंसिडेंट्स हुए हैं, सो इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द माइंड, इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द हार्ट, राइट। सो ये जो स्ट्रेस होता है ये क्रॉनिक वर्कलोड की वजह से होता है, ओवर वर्क के वजह से भी होता है, right, or any traumatic incident which happened suddenly in the life, right, or any past experiences, right। So इसका जो वजह है, उसका जो रूट कॉज है, उसको भी जानना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए, राइट। तो ये भी जो है आप ये भी नोट कर लीजिए, जो भी इसके कॉजेज हैं, राइट। उसका कॉज जो है न्यूट्रिशन भी हो सकता है, या फिर जो है लाइफ एक्सपीरियंस हो सकते हैं, या फिर मिजाज हो सकता है, राइट। तो ये जो न्यूट्रिशन जो वाला ट्रीटमेंट होता है उसमें ये जो मिनरल्स होते हैं ना, ज़्यादातर ये ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिंक्स, इसको जो है डाइट में लेना पड़ता है, उसको ज़्यादा डाइट में इंक्लूड करना पड़ता है, राइट। और उसके अलावा हर्बल में आप लेंगे, अगर देखेंगे ना, तो यू कैन टेक वन कैन टेक हर्ब्स लाइक अश्वगंधा, ये इसको इंडियन जिंगसेंग कहते हैं। यू कैन टेक तुलसी, यू कैन टेक ये जो हिबिस्कस का टी है, फिर कैमोमाइल टी है। ये सब जो है स्ट्रेस लेवल्स को, ये ट्रिगर्स को जो है कम करते हैं, नोट कर लीजिए, राइट। तो इसको भी जो है यूज़ कर सकते हैं, राइट। फिर आपका ये तिब्बे नबवी में तलबीना है, फिर जफ़र जल है, राइट। जफ़र जल जो है बहुत से लोगों को नहीं पता, ये जफ़र जल जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राइट, इसको रिकमेंड किए हैं। ये इन्होंने कहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कहा कि जफ़र जल ये सीने को सुकून देता है, राइट। तो इट गिव्स कामनेस, इट गिव्स कामनेस टू द चेस्ट। दिस इज व्हाट प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज टोल्ड अस, राइट। सो वी कैन आल्सो choose these herbs, these Tibetan foods, right? Even cupping, hijama therapy also detoxifies the mind. अब हमें समझते हैं कि only detoxifies the body, but it also detoxifies the blood, right? The mind, right? I have seen many patients when they came to me for the treatment of hair fall, or for the treatment of some other issues related to back pain, neck pain, cervical, or some other issues related to joint pain.
But when I did hijama, after 2 or 3 days, they told me that they feel a lot better, right? Their stress is gone, right? Or they're overthinking, all the issues have been just vanished, right? Alhamdulillah. So one can also try hijama to de-stress, to relieve anxiety, inshallah, right? तो ये इसके ट्रीटमेंट से रेंज ऑफ ट्रीटमेंट्स है जो हम चूज कर सकते हैं वन बाय वन, राइट। सो न्यूट्रिशन थेरेपी है, फिर हिजामा थेरेपी है, फिर उसके अलावा अरोमा थेरेपी है। यानी वो जो एसेंशियल्स ऑयल होते हैं जिसमें खुशबू आती है, द ओरिजिन आर द प्लांट्स एंड द फ्रूट्स एंड द फ्लावर्स, राइट। फॉर एग्जांपल लैवेंडर, ये जो फ्लावर है ना, ये एंग्जाइटी के लिए बेहतरीन ऑयल है। इसको हम पॉइंट्स में लगाएंगे, स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जो एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर में इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि है हार्ट 7, राइट। और या फिर ये जो यिन टैंग पॉइंट है, जो दो भवें हैं, यानी ये जो आईब्रोज है इसके दो दरमियान में जो जगह है यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे अगर ऑयल लगाएंगे लेवेंडर ऑयल, तो यू कैन फील बेटर, योर एंग्जाइटी लेवल्स माइट गो डाउन, राइट। तो ये हमने बहुत से बार हमने देखा है प्रैक्टिस में, इट वर्क्स लाइक एनीथिंग, राइट। यू हैव इलांग इलांग ऑयल, you have geranium oil. Along with that, flower medicine also does wonders. What is a flower medicine? Actually, it's a homeopathic remedy, right? Doesn't have any side effects. It is safe for everyone. It is safe for kids. It is absolutely safe for everyone, of people of every age. Okay, what it does, it clears the mind. It helps people with anxiety, helps people with stress, helps people with depression, राइट। तो ये जो है, ये आराम से हर कोई ले सकते हैं, इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता, इसमें कोई आफ्टर इफेक्ट्स कुछ नहीं होता, राइट। और ये बेहतरीन तरीके से काम करता है, राइट। तो ये इतने सारे जो है इसके मेथड्स है इसको मैनेज करने के लिए, लेकिन अफसोस, दर अफसोस के लोग जो है जाते हैं साइकाट्रिस्ट के पास, हाँ, चेकअप करना, इट्स ओके, इट्स रियली good to take advice from psychiatrists, but वो जो ड्रग्स होते हैं ना, मेडिसिन जो ड्रग्स होते हैं, डिप्रेशन वाले ड्रग्स होते हैं, एंटी डिप्रेशन वाले ड्रग्स होते हैं, राइट, और जो नींद की गोलियां होते हैं, राइट, सो दोज थिंग्स आर नॉट गुड, दे आर नॉट हेल्दी, राइट। सो आई हैव सीन लॉट ऑफ केसेस, पीपल दे व्हेन दे टुक इट, राइट, दे बिकेम वेरी एडिक्टेड टू इट, ओके, दे कैन नॉट विथड्रॉ फ्रॉम सच थिंग्स, राइट। अगर वो छोड़ते हैं तो उनको विथड्रॉल सिम्टम्स आ जाते हैं, फिर से दोबारा वो जाकर लेते हैं, राइट। सो दे बिकम लाइफ लॉन्ग कस्टमर टू दोस मेडिसिन। अब ये जो होलिस्टिक वे में आप करेंगे ना, तो इसके रिजल्ट्स भी लॉन्ग लास्टिंग है, सेफ है, राइट, और वेरी इफेक्टिव है एज वेल, राइट। सो मेक ए नोट, राइट। अच्छा, तो इसके अलावा जो साइकोथेरेपी वाले ट्रीटमेंट्स होते हैं या फिर साइकोथेरेपी वाले टेक्निक्स होते हैं, वो बहुत सारा है, जैसा कि सीबीडी है, या फिर कॉग्निटिव डिफ्यूजन है, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन है, जर्नलिंग है, राइट, एक्सप्रेसिव राइटिंग है, फिर ड्राइंग थेरेपी है। जैसा कि ये पहला वाला, ये कॉग्निटिव डिफ्यूजन, इसका टेक्निक ऐसा है कि अगर आपको कोई थॉट आए, सो डोंट थिंक दैट इट इज फ्रॉम यू, थिंक, जस्ट थिंक इट इज सम एक्सटर्नल थिंग, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल आपको एक थॉट आ रही है कि जो है मेरे बॉस ने ऐसा क्यों किया, मैं तो ठीक से काम कर रहा था, आई वॉज वेरी लॉयल, आई वॉज वेरी वर्किंग वेरी हार्ड, वाई डिड माई बॉस टू डू दिस टू मी। सो ये अगर आपको बार बार आया है, तो थिंक इट इज नॉट यू, okay, it is from something outside, right? So think as if it is coming in front of you and you're just ignoring it, okay? So think as if it is not from you, it is from something from outside. ये वाला टेक्निक भी जो है बहुत से लोगों को फायदा देता है। और नंबर 2 है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, राइट। सो माइंडफुलनेस यानी जो है, जो आपके अतराफ जो भी चीज़ें है ना, उस पर आपका फोकस, उसको पलटाना, राइट। फॉर एग्जांपल आप जो है, आपका जो स्पेस है, आपकी जो जगह है, उससे बाहर आइए, आप जाइए कोई पार्क जाइए और बीच जाइए, गो टू द बीच, गो टू द पार्क, गो टू द ग्रीन एरिया, जस्ट वॉच, look at the birds, look at the sky, look at the water, right? So try to grasp 5 things, right? The chirping sounds of the birds, the sound of the water, the sound of the air, right? Your breathing sound when you breathe. Try to grasp your breathing sound. What happens when you breathe, right? The sound of your breath. So when you divert your attention towards things around you, okay, you can come out from the amygdala's trap. अमिगडाला जो है उसका जो ये है ना, उसका जो जो ट्रिगर हुआ है, उससे आप बाहर आ सकते हैं,
राइट। सो जो माइंडफुलनेस है और जो मेडिटेशन वाला टेक्निक है ना, वो हम सब भी जानते हैं। ये हम हर रोज 5 वक्त करते हैं, जो 5 वक्त की नमाज है, 5 टाइम्स डेली प्रेयर है, राइट। उसमें जो करते हैं उसके ताल्लुक से अभी इंशाल्लाह मजीद मैं बात करूंगा आने वाले स्लाइड्स में, राइट। सो मेडिटेशन ये वाला भी टेक्निक है। अल्हम्दुलिल्लाह वी बिलोंग टू द मुस्लिम कम्युनिटी, वी हैव आवर ओन वे ऑफ मेडिटेशन विच इज सलाह, विच इज नमाज, विच इज प्रेयर, right? I will talk to you regarding this in the coming slides. Okay, let me speak about the other things, right? Journaling है, expressive writing है। इसको कैसे करते हैं? हाँ, जो भी आपके मन में, आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं ना, बस आप उसको लिखते रहना है, टाइप नहीं करना है उसको। ओके, सो यू हैव टू राइट वॉट एवर योर ब्रेन सेज, राइट। आपका दिमाग कह रहा है कि उसको जो है हेड वेट है वो इतना बुरा है, ये इतनी बुरी है। ओके, लिखते जाइए आप, जस्ट लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। कीप ऑन राइटिंग, कीप ऑन राइटिंग। आफ्टर राइटिंग जस्ट राइट सम वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो भी अल्लाह आपको दिया है, जो भी परवरदिगार आपको, अल्लाह ताला ने आपको दिया है, जो भी नामतें दिया है, राइट, उसके ताल्लुक से आप लिखिए ग्रैटिट्यूड राइटिंग, राइट। लिखते जाइए, राइट। और जो भी जो है आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, राइट, ये भी जो है डिटेल से आप लिखिए ना, तो यू विल सी दैट योर माइंड इज शिफ्टिंग, your mind is shifting, right. It is shifting towards the frontal cortex, right. And you're coming out of the trap of amygdala, okay, जो फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स है, और जो स्ट्रेस वाले हार्मोन्स होते हैं, राइट, कॉर्टिसोल, राइट, वो वाले सिस्टम से आप बाहर आ जाएंगे, और आपके बॉडी में हैप्पी हार्मोन सिक्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, राइट। जब आप लिखेंगे ना, आखिर में आपको हो सकता है आपको थोड़ा रोना आ जाए, राइट, आप जो है थोड़ा टायर्ड महसूस करें, दैट इज अ साइन दैट इट इज वर्किंग, दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक, दैट इज अ साइन दैट यू हैव released all your thoughts, your emotions, all your negative ideas, you have released by writing, राइट। एक्चुअली क्या है ना, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स होते हैं, आपको उसको रिलीज करना है, और ये एक तरीका है रिलीज करने का। दिस इज द वे यू, वन ऑफ द वे टू रिलीज योर, yeah, release your anxiety, your stress through writing, right? This is a very effective way, I'll tell you, please make a note, right? तो ये इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एक्सप्रेसिव राइटिंग और जर्नलिंग, राइट। सो दिस इज अनदर टेक्निक टू स्ट्रेस आउट। दूसरी टेक्निक है ये ड्राइंग, पेंटिंग, कलरिंग, राइट। सो ये अगर करेंगे ना, इससे भी जो है स्ट्रेस रिलीव होता है। ये ज़्यादातर टीनेजर्स या फिर बच्चे हैं, इन लोगों को देते हैं, बड़े भी कर सकते हैं। इससे भी जो है स्ट्रेस रिलीव होता है, जब जो है कुछ क्रिएटिव जो है करते हैं ना, क्रिएटिव कुछ ड्राइंग करते हैं, तो उससे भी जो है हमारा जो अमिगडाला का जो रीजन है वो शट डाउन होता है, और प्री फ्रंटल जो कॉर्टेक्स होता है, जो डिसीजन मेकिंग और जो रैशनल होता है, जो जो है जो रैशनल थिंकिंग वाला है, और जो सही डिसीजन होता है, और जो इमोशनल वाला नहीं होता है, वो ट्रिगर होता है, और वो एक्टिवेट होता है। तो उससे क्या होता है, हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स है, जैसा कि सेरोटोनिन है, वो सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं, राइट। सो दीज आर द फ्यू टेक्निक्स विच वी कैन स्टार्ट राइट अवे, राइट। तो आप कॉग्निटिव डिवीजन शुरू कर सकते हैं, कल सुबह से शुरू करते हैं, अभी से शुरू कर सकते हैं आप। जर्नलिंग शुरू कर सकते हैं, माइंडफुलनेस शुरू कर सकते हैं, राइट। और ये जो ड्राइंग थेरेपी है, आर्ट थेरेपी है, अभी से आप शुरू कर सकते हैं, राइट। अच्छा, और ये अभी मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला हूँ, एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, आप याद रख लीजिए, राइट। ठीक है, ये है हमारा ब्रेन, राइट। और ब्रेन में दो रीजन्स है, एक है लेफ्ट है और एक राइट है। ये जो लेफ्ट वाला है ना, ये मैस्कुलाइन पावर वाला है, राइट। ब्रेन तो सभी सभी के पास एक ही होता है, लेकिन इसके दो सेक्शंस होते हैं, याद रख लीजिए। ये एक लेफ्ट वाला सेक्शन जो मैस्कुलिन है, जो एकदम एनालिटिक है, लॉजिकल है, स्ट्रक्चर्ड है। जब जो है किसी चीज़ को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, तो हमारा ये जो लेफ्ट ब्रेन है ये काम करता है, नोट कर लीजिए, राइट। प्लानिंग, लैंग्वेज, मैथ, साइंस, ये लेफ्ट ब्रेन हमारा एक्टिवेट होता है। और जब हम ये जो राइट ब्रेन यूज करते हैं ना, राइट, राइट ब्रेन कैसे यूज करते हैं हम? हाँ, कोई जो है आर्ट कर रहे हैं, या फिर एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंक कर रहे हैं, या फिर जो है इमेजिन कर रहे हैं, किसी चीज़ का इमेजिन करता है। व्हेन वी इमेजिन, व्हेन वी डू समथिंग क्रिएटिव, आवर लेफ्ट ब्रेन स्टार्ट्स टू एक्टिवेट, राइट। और नोट कर लीजिए, जब हम लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं ना, यस, ऑल गुड हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स
लाइक सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं। याद रख लीजिए, ये जब हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होता है ना, तो हमारा हमारा बॉडी का जो हेल्थ है ये बूस्ट हो जाता है। इट ऑटोमेटिकली गेट्स अ बूस्ट। सो और हमारा इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट हो जाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है, जो भी पेन है वो गायब हो जाता है। राइट। और जो भी अंदर इम्यून सिस्टम जो वीक रहता है ना, वो बूस्ट होकर आ जाता है। राइट। और एंटीऑक्सीडेंट्स का जो लेवल है वो भी बढ़ जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स जब बढ़ जाते हैं तो कैंसर होने का, या फिर हार्ट अटैक का, या फिर डायबिटीज होने का जो भी इम्कान है, जो भी उसके पॉसिबिलिटीज हैं, वो सब कम हो जाते हैं। नोट कर लीजिए। राइट। राइट। तो क्या करना होगा हमको, कि जब भी हम स्ट्रेस के सिचुएशंस में आते हैं ना, जब भी हमें स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होता है, सो वी हैव टू ट्राई टू एक्टिवेट आवर राइट ब्रेन। तो एक्टिवेट करने के लिए क्या करना होता है, नोट कर लीजिए। हाँ, बी क्रिएटिव। ओके। तो आपको क्रिएटिव होना चाहिए। सो यू हैव टू ड्रॉ समथिंग, यू हैव टू रीड स्टोरीज, यू हैव टू लर्न सम न्यू लैंग्वेज। राइट। यू हैव टू सॉल्व पजल्स, पजल्स सॉल्व करना है आपको। राइट। एक्सरसाइज करना होता है, वॉकिंग करना होता है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना होता है, या फिर किसी के साथ मिलके आप कोई गेम खेलना होता है, कोलैबोरेटिव एक्टिविटी करना होता है। जर्नलिंग, जर्नलिंग भी जो है आपका जो राइट ब्रेन है उसको एक्टिवेट करता है। राइट। और उसके अलावा डीप ब्रीथिंग है। राइट। और उसके अलावा जो भी स्पोर्ट एक्टिविटी है, इमेजिनेशन, जो भी इमेजिनेशन आप करेंगे ना, हाँ, आपका जो राइट ब्रेन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और जो आपका स्ट्रेस लेवल्स है वो आप खुद कम हो जाएंगे। राइट। डज एनीवन हैव एनी डाउट हियर? राइट। अच्छा। अच्छा, तो आपको समझ में आ गया होगा अभी अभी क्या करना है। सो व्हाट आर वी सपोज टू डू व्हेन वी फील दैट वी आर बीइंग ट्रिगर्ड? राइट। We are under stress, we are under some kind of, you know, racing thoughts. What are we supposed to do? We are supposed to activate our right brain. ओके, क्या करना है आपको? आपके राइट ब्रेन को इसको ट्रिगर करना होगा। जाइए आप, कोई जो है पार्क में जाइए, कोई जो है बाहर जाइए, आप कोई बीच को जाइए, या फिर जो है कोई रिक्रिएशन सेंटर जाइए आप। राइट। थोड़ा रिलीफ करिए आप अपने आप को। राइट। सो गेट टुगेदर, गेट टुगेदर विथ योर फ्रेंड्स, गेट टुगेदर विथ योर फैमिली, विथ योर रिलेटिव्स। राइट। टॉक। राइट। release your emotions. Right. And try to do imaginative things, try to do your follow your intuitions. Right. Follow what your right brain says. Right. जब आप ये करेंगे तो आपको फायदा होगा। Right. You will come out of that bubble. Right. You will and definitely come out from the bubble. Right. अच्छा, अब ये जो माइंडफुलनेस है, इसके ताल्लुक से अभी मैं बताऊं आपको व्हाट इज माइंडफुलनेस। मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूं कि माइंडफुलनेस क्या होता है। माइंडफुलनेस होता है कि आपके जो अतराफ और अकनाफ जो भी जितनी भी चीज़ें हैं ना, उसको आप नोट करना, उसको आप 100% उसको उस पर कॉन्सेंट्रेट करना, फोकस करना, और उसको जो है आप फील करना। राइट। जब आप ये करेंगे ना, जो भी आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जो भी आपको जो है रेसिंग माइंड आ रहा है, उससे आप रिलीज हो जाएंगे। उस कंडीशन से, उस सिचुएशन से आप शिफ्ट हो जाएंगे। यू विल शिफ्ट योर ब्रेन फ्रॉम ट्रिगरिंग दैट अमिगडाला टू योर राइट ब्रेन। राइट। सो आप इस्लामिक प्रैक्टिसेस में आपको क्या करना होगा? यू हैव टू स्लो डाउन। दैट इज व्हेन यू रिसाइट योर कुरान, यू हैव टू स्लो डाउन। व्हेन यू डू योर सलाह, व्हेन यू मेक योर प्रेयर्स, you have to slow down. When you do your sujood, ruku, right? And whatever you do in your salah, you have to do it slowly. धीमे करिए, एकदम स्लो करिए। सिजदा स्लोली आप सिजदा करेंगे ना, तो उसको आपको ज़रूर उसका मज़ा आपको आएगा। राइट। जब आप नमाज आपका पढ़कर ख़त्म करेंगे ना, when you end up your salah, you will feel relaxed, very much relaxed, where you will feel like you want to sleep. आपको नींद आएगी, आपको जो है एकदम रिलीफ मिलेगा। और उसके अलावा जब भी आप तिलावत पाक, कुरान पाक करते हैं ना, तो आप स्लो करिए उसको।
उसको आप तिलावा जो है स्लो करिए, और उसके जो माने हैं, उसको जो उसके जो मीनिंग्स है उस पर आप कॉन्टेम्पलेट करिए, उस पर रिफ्लेक्ट करिए, राइट। सो दिस इज कॉल्ड इस्लामिक माइंडफुलनेस, दिस इज व्हाट आई विल से। अब आप जो है बहुत सारे ये स्ट्रेस रिलीफ के वर्कशॉप्स अटेंड किए होंगे, उसमें आपने ये सुना होगा mindfulness, mindfulness. Okay, but what I'm telling now here is Islamic mindfulness. You have to read Quran with full of concentration. You have to understand each and every word. Okay, जो आप पढ़ रहे हैं ना उसका जो माना है, आप उसको जान के पढ़ना होगा। आपको अगर अरबी नहीं आती तो कोई मसला नहीं, आप उठा लीजिए इंग्लिश ट्रांसलेशन या उर्दू ट्रांसलेशन, जो भी आप लैंग्वेज में वेल एंड गुड है वो उठा लीजिए। आप रीड द ट्रांसलेशन, ट्राई टू कॉन्टेम्पलेट ऑन द मीनिंग्स, राइट। ट्राई टू रिफ्लेक्ट व्हाट यू आर रिसाइटिंग, ट्राई टू रिफ्लेक्ट व्हाट यू आर डूइंग, राइट। सो बी ऑन द प्रेजेंट टाइम, ओके, डोंट बी समवेयर, राइट। आप सजदा कर रहे हैं, रिलैक्स से करिए, राइट। आपका जो हार्ट बीट है उसको आप सेंस करिए जब आप सजदा कर रहे हैं। आपका जो आपकी जो सांस है, राइट, आपकी जो नफस है, राइट, आपका जो एयरवेज जो उसका जो साउंड है वो आप सुनिए, राइट। ईच एंड एवरी थिंग, लिसन टू ईच एंड एवरी थिंग, ओके, कॉन्सेंट्रेट ऑन एवरी थिंग, वट एवर यू डू, राइट, देन यू विल सी अ बिग चेंज, आई चैलेंज यू, राइट। जो आप सलाह ख़त्म करते हैं ना, when you finish your salah, you will start crying, right? You will start crying, okay? You will feel you have released a big burden, right? So when you cry, when you feel heavy, after some time you will feel good. That is a sign that you have released your burden, right? So बताइए हम कितने लोग इसे इसे करते हैं, right? दिस इज कॉल्ड इस्लामिक माइंडफुलनेस। ये कर सकते हैं तहज्जुद में, ये कर सकते हैं, राइट, घर में, आपके घर में जब आप नफिल प्रेयर्स पढ़ते हैं ना, ये आप कर सकते हैं, राइट। यही तिब्बे नबी का रास्ता है भाइयों बहनों, my brothers and sisters, right? This is what our Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam used to do whenever he was there in problematic situations, whenever he was going through with setbacks, he would sit down and pray, right? 2 रकात नमाज पढ़ते थे और अल्लाह के यहाँ जो है गिड़गिड़ा कर रोते थे, राइट। सो दिस इज द अल्टीमेट, आई टेल यू, दिस इज द अल्टीमेट solution what we have for today's stress, for today's depression, for today's racing thought problem, and whatever it is, राइट। सो ये करना जो है हमारे लिए आसान है, तो ये आप जो है करना शुरू कर लीजिए, राइट। सो व्हाट आर वी सपोज टू डू, राइट, as a psychotherapy, as simple exercises, we are supposed to activate our right brain, right. So what does the right brain do? Yeah, it right brain, yeah, it shifts our brain from stress to, yeah, relief, relieves us from all those stress hormones, राइट। इसमें क्या होता है, सेरोटोनिन रिलीज होता है, और जो भी जो है प्रॉब्लम्स है जैसा कि पाल्पिटेशंस है, हार्ट रेट बढ़ जाना, राइट, और जो है इसके वजह से जो है बार बार इन्फेक्शंस आना, ये सब कम हो जाते हैं। तो ये हिडन पैंडेमिक मैंने क्यों बताया, क्योंकि जो लोग आते हैं ना प्रॉब्लम्स लेके, राइट, फिजिकल प्रॉब्लम्स लेते हैं, तो मैक्सिमम जो है लोग के पास उनके अंदर क्या होता है, दे आर going through under stress. So that stress is eating them from inside. So they have hypertension, they have insulin resistance, they have thyroid, right? And whatever, whatever they have, that is because they are carrying stress in their body. They have no idea that they are undergoing stress. They have no idea how to get rid of this, right? ओके और उसके अलावा एक और फाइनली एक पावरफुल ट्रिक मैं आपको बताऊंगा अभी, वो क्या है, हेल्पर थेरेपी, राइट। ओरिजिनली डिस्कवर्ड बाय ए साइंटिस्ट कॉल्ड फ्रैंक, ही वाज अ साइकोलॉजिस्ट, राइट। ये सिस्टम क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा, राइट। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन टाइप इट और यू कैन आस्क मी यूजिंग द माइक। This is called helper therapy, right? So the word itself says what? Yeah, helper therapy. Helper यानी हेल्प करने वाला। अभी मैं क्या किया, अभी मैं आपको बताया कि कैसे जो है लोगों को जो है स्ट्रेस इफेक्ट कर रहा है, और क्यों इसे जो है ग्लोबल पैंडेमिक जो है कह रहे हैं, और इसका रिसर्च क्या है और इसका मैकेनिज्म कैसा है, इसको कैसे हैंडल करना है, राइट। एग्जैक्टली जो मैं आपको बताया ना, दिस एग्जैक्टली यू गो एंड एक्सप्लेन इट टू अदर्स,
right? When you will do this, you will heal yourself. This is the one example of this helper therapy technique, right? समझ रहे हैं आप? Right. So there is a saying in English: the best defense is offense. Okay, I hope you are getting the point. Actually, when you are explaining all these things, right? Try to help others. Okay, by explaining about the therapy, about all these things. When you are helping someone, it's actually right. You are helping yourself first. Okay, when you are helping someone, it's actually you are helping yourself first. राइट, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? यस. सो जो भी आज आप सीखे ना, ये आप दूसरों को बताइए, दूसरों को आप जो है इस ये चीज़ पहुंचाइए, दूसरों तक ये बहुत पहुंचाइए कि ये स्ट्रेस क्या है, ये कैसे इसका मैकेनिज्म है, और इससे कैसे बाहर आते हैं, और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या है. तो अगर आप ये चीज़ दूसरों को बताएंगे ना, तो एक्चुअली यू आर डूइंग थेरेपी टू योर सेल्फ फर्स्ट. समझ रहे हैं आप? सो दिस इज कॉल्ड हेल्पर थेरेपी. अभी क्या करते हैं ये जो साइकेट्रिस्ट हैं और मेरी तरह जो काउंसलिंग थेरेपी करते हैं ना, ये जब बताते हैं किसी टीनेजर को या फिर अडल्ट को बताते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको ये भी एडवाइस करते हैं कि ये आप यू रिपीट ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस. ओके, रिपीट टू योर सेल्फ एंड ऑल्सो टीच इट टू समवन एल्स. राइट. और आज इंटरनेट का जमाना है, राइट? You can reach anyone, any place, at any time, right? So you can switch on your mic, start login in Zoom, and you can talk to hundreds of people online, right? And you can share this information to millions of people out there. So when you do this, actually you're helping yourself, right? So you have to repeat all these things. You have to teach these things to others, right? When you do this, actually you are doing therapy to yourself. Okay, so this is called as the helper therapy, the client as the teacher, right? So what it does is it brings you out from the stress, region, right? Brings all the good hormones, right? It reduces the stress hormones like cortisol, right? And like adrenaline, all those, you know, hormones which are related to stress. Okay, they all come down, they get decreased, and you feel wonderful, inshallah. Right. So I hope this session was good, was very beneficial. अगर आपके पास कोई सवाल है, right? अगर कोई inquiry है तो इंशाल्लाह आप कर सकते हैं. I'm here to explain to you, inshallah. So let's be interactive ना. आप सवाल करेंगे ना, तो और बेहतर होगा, आप भी समझेंगे और दूसरे भी समझेंगे, इंशाल्लाह. What a beneficial webinar. Thank you so much, Sir Abdul Ahad, for that. We learned about the root causes of stress and how to manage it through our lifestyle, diet, psychological and Islamic techniques. उम्मीद है आप सबके लिए भी ये सेशन फ़ायदेमंद और इंटरेस्टिंग रहा होगा. आप लोग के कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर चैट बॉक्स में डालिए या माइक अनम्यूट करके पूछिए. And we would also love to hear your feedbacks. अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आया है. काइंडली हेल्पर थेरेपी के बारे में. अच्छा, कुछ और बताए थे. हाँ, ठीक है. राइट. अच्छा, तो मैं इसके पर, हाँ, इस पर थोड़ा और लाइट डालना मैं गौर करूँगा, इंशाल्लाह. Right. So helper therapy, I'll give you another example of that. Right. So if you know any technique, like whatever techniques we just discussed, right, can be cognitive diffusion or mindfulness, meditation. Yeah, meditation. We have salah, namaz, journaling, expressive writing, other techniques. Right. So if you
teach this to someone else, okay, with an intention of helping out them, because they might be under stress, they might be under some anxiety disorder or whatsoever, right? So when you teach any of this technique and all of the techniques or help them to solve their issue, actually you will help yourself first, राइट? तब आप करेंगे ना, आप ऑटोमेटिकली वो जो स्ट्रेस वाले सिचुएशन से आप बाहर आ जाएंगे। हमने बहुत से बार जो है, बहुत बार ये महसूस किया है, मैं खुद महसूस किया हूँ। सो व्हाट आई डू व्हेन आई स्ट्रेस फील स्ट्रेस्ड आउट, व्हेन आई एम ब्लॉक्ड, मेरा माइंड ब्लॉक है, राइट, तो मैं क्या करता हूँ, आई स्टार्ट टू टीच समवन समथिंग गुड, राइट? इट माइट बी रिगार्डिंग हेल्थ, इट माइट बी रिगार्डिंग लाइफ। कोई लाइफ स्किल सिखाना भी जो है एक बेहतरीन चीज़ है ना, एक फ़ायदेमंद चीज़ है ना। आजकल जो है बच्चे जो जेनजी हैं, जेन अल्फ़ा हैं, राइट, सो उनका जो सिस्टम है, मतलब उनका जो थॉट्स है, उनका जो ईक्यू है, इमोशनल क्वेश्चन है, वो टोटली डिफरेंट है। उनको जो है हम लाइफ लाइफ लेसन्स देना बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। Okay, if Allah permits, inshallah, we'll talk about these issues related to the Gen Z, Gen Alpha, intelligent question, right? तो ये भी एक important topic है जो हमें जो है जानना है, right? तो जो भी आपको जो भी लाइफ स्किल आता है, right? साइकोलॉजी के अलावा जो भी लाइफ स्किल आता है, वो अगर आप दूसरों को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली मेंबर को जब आप बोलेंगे ना, काउंसलिंग देंगे ना, तो आप ये जो स्ट्रेस वाले सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। इट्स अ पावरफुल टेक्निक, आई टेल यू, आई चैलेंज यू, आई हैव हेल्प मेनी पीपल बाय टीचिंग देम दिस टेक्निक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा ये एक और सवाल है सर, एग्जाम स्ट्रेस को कम करने के कोई तरीके बता दें प्लीज। ओके, सो वांट टू कम आउट फ्रॉम द एग्जाम स्ट्रेस। ओके, आप क्या करिए, थोड़ा आपका जो टाइम है ना उसको थोड़ा अलॉट करिए आपके जो हॉबीज हैं उसको करने का। Suppose you like drawing, do it. If you like crafts, art and craft, you do it. You like football, play it. Okay. So when you allot certain time for your favorite game or for your favorite play, right? आपका जो serotonin है, good hormone है, happy hormone है, वो boost होके आ जाएगा, right? So you will feel less stress, inshallah, right? So what is the meaning of cognitive thinking or diffusion? See, cognitive diffusion is you have to think that your emotion is some third person. ये आप नहीं है, जो भी आपके दिमाग में बार बार आ रहा है, सवालें आ रही हैं, या फिर जो है कोई चीज आपको सता रही है, सो थिंक इट इज समथिंग फॉरेन, राइट? एंड इट इज समथिंग एलियन, इट इज नॉट यू, राइट? So if you think for a while or for a few days, those thoughts will just ये हो जाएंगे, मतलब बर्स्ट हो जाएंगे, गायब ही हो जाएंगे, राइट? सो ओनली you will get into problem only when you follow those thoughts, when you keep following those thoughts, okay, when you keep thinking again over and again, that why am I thinking this, why am I thinking that, why it's coming in my mind again and again, right? Just forget about it. When it comes, just try to swipe it right down, that's it. Okay, so is there anything else anyone would like to know? Sister Shaima Sanim, yes. Yes, sister, you can talk. Yes, Sister Shaima, you can talk. Okay, thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Walaikum wabarakatuh. assalam warahmatullah. Yes. First, I'm sorry if my question is already answered before with your explanation because really I don't understand Urdu. My It's okay, you question can talk in is, English. Yeah, yeah. Yeah, you can say. okay, what are the earliest physical sign in the body that show stress has become chronic? And the second question is from Tib and Hijama perspective, how does stress affect the body and what's the natural way to balance it? Thank you. Jazakallah for that question. I was just waiting for those questions. Okay. See, the things are there on the screen. You can take a screenshot if you like, right? So the basic things which a person will feel when the stress is chronic is they will have hair fall, right?
and they might have stiff neck or headache, right? A very heavy head is also one of the symptom. Hmm? And they can also have insomnia, that is, they will not be able to sleep properly. All right. Otherwise, if they sleep, they will not have that proper sleep. They won't have that deep sleep. You understand what I'm talking? Right. So these are the initial signs. Okay. So stress, when it becomes very, very chronic and they are not identifying, they're not diagnosing stress, and just they're taking the medicine, they're taking the pills, that might lead to major problems. It might lead to cardiovascular problems, right? It can trigger neurological problems and so on, right? So since you mentioned hijama here, hijama is the best remedy for stress, right? So if you have stress, right away go and do hijama as soon as possible, because hijama, it helps a person to relieve stress, to secrete all those happy hormones. We have seen it 1,000 times. Whenever we did hijama session, the next day the patient would be very happy. They would send Jazakallah. They'll cry sometimes. They'll just call and cry. So we have seen this several times, sister. Jazakallah for that question. The question is, if family is giving you stress again and again, it's on daily routine. So how person deal with it? Such a tricky question, right? So brother, sister, you have to go and meet the counselor first. Okay. So this has to be dealt personally, right? So you have to talk with the expert, okay, for maybe for many minutes, maybe for 1 hour, 1.5 hours. Then they will give you the suggestion, right? So I can't give you here. Generally, I can't give you because it's a personal issue. Okay. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Something environmental factors lead us towards stress. At that time, what can we do? Can you be specific? What are the environmental factors? I've also mentioned some of here. Uh, just check it out whether it matches yours. Mm. So it can be digital overload. Okay, can be your cell phone, can be your digital devices, can be chronic uh, overwork, overload, financial loss. Right. So you have to find the right trigger, brother. You have to find the right trigger, and then you have to try those techniques which I told you. Walaikum salam. How can I manage postpartum depression, where is that question, while still taking care of my newborn baby and a toddler? Yeah, so again, you have to go and meet psychotherapist, right? You have to get advice. Okay, so see, personal therapy, personal care cannot be given here online, right? So you have to talk personally, and we have to find the triggers. We have to find personal remedies for you, because each and every person is unique, right? So what we discussed today, these are the general ones, right? So these are the things which anyone can try. Anyone has to try. All of us has to try, right? So these are the techniques which I do personally when I feel very anxious, stressed out. Okay. Okay, I hope this session was very beneficial. Shall we conclude, Sister Aisha? Can we conclude the Yes, session? yes, we can. As we have come to the end of our today's webinar, मोबील के जानिब से मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारे अमेजिंग स्पीकर सर अब्दुल अहद का, जिन्होंने इतने खूबसूरती से स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है बताया है। आपके वैल्यूबल इंसाइट्स और नॉलेज हम सब के लिए बहुत मुफीद रहे। साथ ही तमाम पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और वेबिनार में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। आपको फर्दर क्वेश्चंस है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो।
थैंक यू एवरीवन, होप हील कम्युनिटी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं कोई फ्यूचर वेबिनार में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।